Hello guys, welcome to the very first session on parasummary. So guys, in this session we will understand the concepts of parasummary. So हम लोग पहले तो एक बार डिस्कस करेंगे कि exactly what are the various steps in which you solve a parasummary question. Okay, so I want people to actually observe as we go through the session what is the technique that I am using to solve a parasummary question, because you can replicate the same technique when you solve an actual CAT question. ओके तो बेसिक्स की हम लोग आज बात करने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट आई वुड बी टेकिंग सम रियल कैट लेवल क्वेश्चंस. ओके तो जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफी अच्छा होगा. ठीक है, सो that would be a good value addition as far as the content part is concerned. Okay, so that is what I plan to do today. And parasummary, as we all realize, is one of the very important topics that you have in verbal ability. So verbal ability का भाई बहुत important topic है, and as we all realize that there are very limited question types on verbal ability. Okay, so you have parajumbles, you have odd one out, you have parasummary, and you have paragraph completion. So it becomes imperative for us to master these areas so that we are able to extract maximum score from the verbal ability पार्ट. ठीक है, वैसे मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि यार वर्बल एबिलिटी में आप एटलीस्ट टारगेट करो कि आपका 5 to 6 क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि अगर आपका वर्बल एबिलिटी में स्कोर अच्छा आ गया देन यू हैव लेस प्रेशर ऑन दी आरसी साइड. ठीक है, एंड very obviously verbal ability takes less, like it takes less time to decide whether or not you want to do a question, and also less time to solve the question. Okay, chalo, so with that let's get started. So let me talk about the basics first. Okay, so what is parasummary? Now first of all, when I say the term parasummary, understand this, that the term parasummary itself is a misnomer. ठीक है, हम लोग जब पैरासमरी टर्म सुनते हैं तो हमें दिमाग में एक इमेज बनती है कि पैरासमरी होगा तो ऐसा है कि भाई मैं आपको पूरे डिस्कशन का एक है ना एक ऐसा समरी बना के दे दूंगा जिसमें डिस्कशन के सारे एंगल्स कवर हो जाएंगे. कैट में ये रियल में नहीं होता. कैट में whatever options you have in parasummary, none of the options will have 100% information, right? So the term summary, when we hear it, we think कि passage का मतलब वो जो पैराग्राफ है उसका हर एंगल आपके पास समरी में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं उनमें जब हम चूज करते हैं, the one that is the answer would capture the basic theme of discussion. It would target the main agenda. अब वो जो मेन एजेंडा को टारगेट करेगा, ठीक है, it will exclude, the right answer will exclude many of those options that do not talk about the main thing. Okay, so there can be a lot of additional details. उससे मुझे मतलब नहीं है, additional details वाले पार्ट को मैं इग्नोर करूंगा. मैं सिर्फ उस ऑप्शन को चूज करूंगा जिसमें I have the most succinct, most pithy version of the discussion, right? Like the one that captures the essence. Okay, not the extra parts, okay, but the essence of discussion, right? Okay, and we all know that there are 4 options in the exam, and one of those options would be the correct parasummary, right? Ab let's see what are the things that we pay attention to when we solve a parasummary question, right? So guys, first step is read the paragraph very carefully and very slowly. Okay, now this is the step where at least around 50-60% people make error. देखिए, ऑप्शंस को आप तभी बेटर सेलेक्ट कर पाओगे जब आपने एक्चुअली समझा है कि जो डिस्कशन है उसमें बात क्या हुई है. अगर आपको यही समझ में नहीं आया कि डिस्कशन में बात क्या हुई है, तो आप ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस नहीं समझ में आएंगे आपको. ठीक है, ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन रीडिंग the paragraph, because the paragraphs that you get on CAT, okay, they're complex paragraphs. Okay, they have a lot of heavy words. ओके, बल्कि टेक्स्ट होता है और पढ़ने में हमें परेशान करता है थोड़ा सा. ठीक है, तो वो फीलिंग आपको रेजिस्ट करनी है कि नहीं यार ज्यादा बोरिंग हो गया, ज्यादा हैवी है. यू हैव टू सस्टेन योर इंटरेस्ट एंड यू हैव टू सस्टेन दैट फोकस एंड यू हैव टू कैप्चर एज मच ऑफ द पैराग्राफ एज पॉसिबल. जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ रहे होगे तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू नोटिस द कीवर्ड्स. ठीक है यार, कौन सा टर्म है जो बार बार आ रहा है, किस चीज को मेनली यहाँ पे बताया जा रहा है. ठीक है, मेन मुद्दा क्या है. ठीक है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो एडिशनल होंगी, डिटेल्स होंगी, ठीक है, एग्जाम्पल्स होंगी. ठीक है, बट मुझे मेन मतलब है जो मेरा मेन डिस्कशन है वो मुझे टारगेट करना है. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप
read the paragraph very carefully, which implies you have to be very slow in reading. At least आप में से जो बच्चे बिगनर्स हैं उनको तो बहुत स्लोली पढ़ना है स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि आपकी गलतियां ज्यादा होंगी. ओके, देन वंस यू हैव रेड इट, ओके, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ डिस्कशन. ओके, व्हाट इज द मेन थीम, किस चीज के बारे में बातचीत चल रही है, मेन एजेंडा क्या है. ओके, वो आपको अपने आप से पूछना है. डिस्कशन को पढ़ने के बाद कंटेम्पलेट करना है, सोच विचार करना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे ऑथर हमें क्या बताना चाह रहा है. ठीक है, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स. ठीक है, मेन जो उसमें वर्ड्स हैं उनको आपको नोटिस करना है. कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर दी सॉर्ट ऑफ वर्ड्स दैट कम वेरी ऑफन, लाइक they are coming again and again in the paragraph given, and you realize कि यार ये वर्ड अगर ऑप्शन आंसर में नहीं दिखे तो शायद वो आंसर वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि इसी चीज के बारे में ये मेन डिस्कशन चल रहा है. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन नोटिसिंग द कीवर्ड्स. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप है ना मेंटली या फिजिकली, ठीक है, या तो लिख के या तो दिमाग में आप एक नोट बनाते चलो कि यार जो मेरा करेक्ट आंसर होगा उसमें ये टॉपिक्स कवर होने ही चाहिए. ठीक है ना, सो यू कैन मेक दैट मेंटल नोट कि ओके, दीज आर द थ्री थिंग्स दैट द ऑथर हैज मेनली टॉक्ड अबाउट. सो व्हाटएवर इज द करेक्ट आंसर, एटलीस्ट ये तीन चीजें तो आनी चाहिए. ठीक है, तो वो आपको करना है. Read the options very carefully and rule out the options that are factually incorrect, guys. This is something that is very very important. अभी factually incorrect क्या चीज होती है थोड़ा मैं समझा देता हूं आपको. Okay, so let us say the passage says India India chose Russia over America for oil imports due to economic reasons. ठीक है, passage में आपको कहा कि India has chosen for its oil supplies Russia because of economic reasons. आपने पढ़ा कि हाँ ठीक है यार, economic reasons की वजह से इंडिया ने अपनी ऑयल सप्लाई रशिया से लेने का डिसाइड किया. नीचे ऑप्शन में आपने पढ़ा इंडिया हैज प्रेफर्ड और चोजन रशिया ओवर अमेरिका फॉर इट्स ऑयल इंपोर्ट्स ड्यू टू इकोनॉमिकल रीजंस. ठीक है, अब बहुत बार क्या होगा कि जब आप पढ़ रहे होगे ना तो आपको उतनी जल्दी रियलाइज नहीं होगा कि ये वर्ड चेंज हो गया. बट द मोमेंट यू चेंज द वर्ड, ओके, इट बिकम्स इकोनॉमिक से इकोनॉमिकल, द मीनिंग चेंजेस एंड द सेंटेंस बिकम्स फैक्चुअली इनकरेक्ट. सो फैक्चुअली इनकरेक्ट का मतलब होता है दैट द इंफॉर्मेशन वाज नॉट गिवन in the passage, and the option mentions like some sort of information that was not even mentioned. Economic means related to finance, economical means related to saving of money. अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल डिस्कशन में इकोनॉमिक रीजंस था कि इकोनॉमिकल रीजंस था. अब इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, और जो नीचे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें आप वो शायद अगर चेक ना करें, सो यू मे एंड अप मेकिंग एरर्स. ओके, है ना, वेरी like there are a lot of ways in which you can be confused. So सबसे पहले तो अभी चेक कर लो कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे नीचे ऑप्शन में दिख रही है क्या वही इन्फॉर्मेशन ऊपर दे रखी है. ओके, लुक आउट फॉर वर्ड प्ले. नाउ व्हाट इज वर्ड प्ले? मैंने सेम वर्ड्स नीचे लिख दिए लेकिन उनका मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया. अब क्योंकि मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो वर्ड्स तो आपको वही नजर आ रहे हैं लेकिन उनका मीनिंग चेंज हो गया. सो ये बहुत होता है. ठीक है, मैंने सेम वर्ड्स जो ऊपर दिए थे वो सारे सेम वर्ड्स नीचे ऑप्शन में लिख दिए बिकॉज आई एम इन अ हरी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट वुड हैपन कि यार मैं नोटिस नहीं कर पाऊंगा कि यार ये जो ऑप्शन है ये सही है या गलत है. तो सेम वर्ड्स दिखेंगे लेकिन उन वर्ड्स का सीक्वेंस चेंज कर दिया गया होगा. उस सीक्वेंस के चेंज करने की वजह से उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. सो बी वेरी कॉशियस अबाउट वर्ड प्ले. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर साउंडिंग होते हैं, सिमिलर स्पेलिंग होती है, कई बार फ्रेजेस जो हैं उनकी पोजीशन चेंज कर दी जाती है. तो बी वेरी केयरफुल गाइस, लुक आउट फॉर वर्ड प्ले. ओके, रूल आउट द ऑप्शंस दैट आर फैक्चुअली करेक्ट बट डोंट टारगेट द थीम. वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो यार, आपने सबसे पहले चारों ऑप्शंस को पढ़ा. फर्स्ट स्टेप में आपने उन ऑप्शंस को हटाया जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है. सो लेट्स से थर्ड एंड फोर्थ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो पैसेज में गिवन ही नहीं थी और वो फैक्चुअली इनवैलिड थी, तो आपने 3 और 4 को एलिमिनेट कर दिया. अब मेरे पास बचे 1 और 2 ऑप्शन जो कि दोनों पैसेज में दे रखे हैं, फैक्चुअली करेक्ट है. अब जब वो फैक्चुअली करेक्ट है तो अब इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा, क्योंकि दोनों ही चीजें पैसेज के हिसाब से सही है. फर्स्ट ऑप्शन भी पैसेज में गिवन है, सेकंड ऑप्शन भी पैसेज में गिवन है. अब मैं क्या करूं? अब आपको ये करना है कि आपको पैसेज
आपको वापस से देख के चेक करना है कि पैसेज में जो मेन थीम था या मेन मुद्दा जो था, मेन एजेंडा जो था वो क्या था। हो सकता है कि 1 और 2 के अंदर जो चीज मेंशन्ड हो वो दोनों ही पैसेज के अकॉर्डिंग सही हो, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सही हो, लेकिन अगर वो मेन थीम को टारगेट नहीं कर रहा तो देन आई कैन रूल दैट वन आउट, राइट। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्चुअली रूल आउट द ऑप्शन दैट इज नॉट टारगेटिंग द मेन एजेंडा। तो भाई फर्स्ट वाला फैक्चुअली सही है लेकिन मेरे मेन मुद्दे को टारगेट नहीं कर रहा, तो मैंने इसको रूल आउट कर दिया। ओके, एंड सेकंड बिकम्स माय आंसर बिकॉज इट टारगेट्स द मेन एजेंडा एंड इट्स आल्सो फैक्चुअली करेक्ट। Okay, if you think that there are two options that look very similar, then read them again and try to see कौन से words हैं जो दोनों को जो दोनों में differences create करते हैं। ठीक है, बहुत बार क्या होगा ना, आप जब पैराजिम्बल को पढ़ोगे, जैसे 1 और 2 ऑप्शन है, अब इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम लगेगा आपको, लेकिन ऑन दी सेकंड रीडिंग यू वुड रियलाइज कि नहीं, एक वर्ड का डिफरेंस है। ठीक है, नाउ वो एक सिंगल वर्ड का जो डिफरेंस है, उस एक वर्ड की वजह से एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर हो रहा होगा। ठीक है, so whenever you find that there are two options that look very similar, read them again and try to see if there is this minor difference, okay, that subtle difference of one word or two words, okay, and then that will what will help you to decide whether or not you should choose that option, right? Okay, look out for factual inconsistencies, so that we have already discussed. Now फाइनली जो आपका जो आंसर है, ठीक है, उसमें दो चीजें होंगी। एक तो दैट आंसर वुड बी फैक्चुअली वैलिड, दैट मीन्स कि वो चीज या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली पैसेज के थ्रू ही आ रही होगी, ठीक है, कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। एंड दिस ऑप्शन दैट यू चूज एज द आंसर वुड हैव द बेस्ट फ्रेमिंग। बेस्ट फ्रेमिंग का मतलब क्या हुआ कि जिस सीक्वेंस में इवेंट्स को आपने एक्चुअल पैसेज में मेंशन किया है, उसी सीक्वेंस में या उसी तरीके से जो आपका आंसर है उसमें उन इवेंट्स का रेलेवेंस होगा। एंड लाइक यू नो, लेट मी गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस। सो लेट अस से you have a discussion that talks about a concept, and then in order to prove that concept you have some examples, right? अब मेरे को दो ऑप्शंस दिखे, जिसमें एक ऑप्शन में तो मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, दूसरे ऑप्शन में मैं एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, नाउ इफ आई लुक एट द प्रायोरिटी ऑर्डर, व्हाट डू यू थिंक शुड कम एज नंबर 1 प्रायोरिटी? ऑब्वियसली द कंसेप्ट पार्ट। एग्जाम्पल्स वुड अज्यूम सेकेंडरी प्रायोरिटी। बट इमेजिन करो कि मैंने 100% परफेक्ट ऑप्शन कोई दिया ही नहीं आपको। एक ऑप्शन में मैंने आपको कंसेप्ट ही दिया, एक ऑप्शन में मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही दिए। अब टेक्निकली ये दोनों के दोनों ऑप्शंस एज पर दी पैसेज वैलिड है, कोई गलती नहीं है। सो अब मैं कौन से को चूज करूंगा? आई वुड एक्चुअली गो इन बाय द सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, एंड दैट इज concept is more important than the example. So if I were to face a choice where I have been given options that are both factually correct, but one option has higher priority and the other option has lower priority, I go with an option that would have higher priority. इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा that the term para summary is a misnomer, because para summaries are never perfect. Okay, you always have this dilemma कि यार ये दोनों ऑप्शन सही लग रहा है, अब इनका मैं क्या करूं? Like what should I do? ये तो दोनों ही सही है। How should I make that difference, guys? Okay, then go for priority. ठीक है, देखो ऑप्शन किसकी बेटर फ्रेमिंग है, किस ऑप्शन में आपको लग रहा है कि ज्यादा एक्यूरेटली टारगेट हो रहा है आपका थीम। कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें हो सकता हो कि सेकेंडरी चीजों की बात ना करके आपने प्राइमरी एजेंडा को टारगेट किया है ना, तो गो इन फॉर दैट ऑप्शन, राइट? ओके, एंड ऑल दीज थिंग्स कम विद प्रैक्टिस। तो जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितने ज्यादा अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका ये स्किल होगा। मेरे बताने से स्किल नहीं बढ़ेगा, ठीक है? इट वुड ओनली हैपन व्हेन यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट? Okay, chalo. So with that thing in mind, let's try this question. Okay, so guys, you can pause this video if you want to try it, and then we solve this. Okay, so I hope guys पढ़ लिया आपने question. So let's look at the question. What does it say? Forbes fictional 15 list, after carefully assessing the assets of the likes of Bruce Wayne and Montgomery Burns, has declared that Scrooge McDuck, mining magnate and uncle of Donald Duck, was topped with an estimated net worth of $65 billion, narrowly beating Dragon Smog. ठीक है, so let me explain what this paragraph says. So Forbes की एक fictional list बनी है,
फिक्शनल 15 लिस्ट। अभी जैसे आपको शायद पता ही होगा कि फोर्ब्स वाले रियल वर्ल्ड में मिलियनर्स की बिलियनर्स की लिस्ट बनाते हैं ना, ठीक है, कि भाई ये सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, ठीक है ना, लाइक दीज आर दी टॉप 15 पीपल बाय देयर नेट वर्थ एंड ऑल दैट। तो भाई फोर्ब्स वालों ने ना एक फिक्शनल लिस्ट, यानी कि जो आपके ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो सिर्फ कॉमिक्स में या मूवीज वगैरह में आते हैं, फिक्शनल कैरेक्टर्स की 15 कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाई है, जिसमें उन लोगों ने लाइक कंपेयर किया है जो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं उनकी वेल्थ को, लाइक ब्रूस वेन, ठीक है ना, सो लाइक यू हैव द बैटमैन, राइट, ओके, है ना, मॉन्टगमरी बार्न्स, ओके, अगेन लाइक अ फिक्शनल कैरेक्टर, स्क्रूज मैकडक जानते ही हो आप लोग, है ना, डकटेल्स, ठीक है। तो इन सब लोगों का ना इन्होंने एक फिक्शनल लिस्ट बनाया है कि कौन सबसे ज्यादा पैसे वाला है ना। तो जैसे रियल वर्ल्ड में लिस्ट बनती है, वैसे इनकी भी सीक्वेंसिंग करके इन्होंने लिस्ट बना दी। एंड डोनाल्ड डक हैज net worth of like $65 billion and it like he's narrowly beating dragon smog, okay, so मतलब यार narrowly beating का मतलब कि अगर डोनाल्ड डक टॉप पे है तो जो ये फिक्शनल कैरेक्टर है ड्रैगन स्मॉक, ओके, व्हाटएवर दिस इज, ओके, ये सेकंड नंबर पे होगा, ठीक है। बट परहैप्स द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ एन ऑल टुगेदर रिमार्केबल लिस्ट इज रेयरली नोटेड, लेकिन हम लोग उस लिस्ट का एक रिमार्केबल फीचर बहुत कम नोटिस करते हैं। कौन सा रिमार्केबल फीचर है भाई, देखते हैं। द डिग्री टू विच फिक्शनल बिलियनर्स हैव लॉस्ट ग्राउंड टू रियल लाइफ वंस। किस हद तक फिक्शनल बिलियनर्स के सामने, ठीक है, sorry, the degree to which fictional billionaires have lost ground to real life ones, okay, that means fictional billionaires उतने पैसे वाले नहीं हैं जितने रियल लाइफ के बिलियनर्स हैं, ठीक है। तो ऑथर ये बोल रहा है कि अगर आप उस लिस्ट को देखोगे तो आपको एक चीज नोटिस होगी कि जो फिक्शनल बिलियनर्स है ना, उनका जो पैसा है जो उस लिस्ट में शो किया है ऑब्वियसली वो उतना पैसा नहीं है जो जो फोर्ब्स की जो रियल लिस्ट है उसमें जो रियल बिलियनर्स हैं, असली दुनिया के बिलियनर्स, उनके कंपैरिजन में फिक्शनल वालों के पास पैसा कम है, ठीक है। According to Forbes 2017 list of the world billionaires, Jeff Bezos, the founder of Amazon, an estimated fortune of $98 billion, okay, has recently overtaken Bill Gates to become the world's richest man. So अभी यार ये लोग है ना 2017 की लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी तो और भी ज्यादा अमीर हो गए। तो 2017 की फोर्ब्स की लिस्ट जो थी उसमें जेफ बेजोस वाज एट द टॉप, ओके, एंड like है ना, like Jeff Bezos has beaten and overtaken Bill Gates, तो most possibly Bill Gates पहले richest man होगा, अभी Bill Gates को beat करके Jeff Bezos बन गया richest man, ठीक है। अभी Bill Gates richest man बन गया, उसकी कितनी वर्थ है $98 बिलियन, अपने फिक्शनल वाले के टॉप वाले की कितनी वर्थ थी डोनाल्ड डक की $65 बिलियन। तो वी कैन सी कि यार $98 बिलियन मतलब रियल वर्ल्ड में जो बिलियनर्स है उनके पास पैसा ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि टॉप पोजीशन पे $98 बिलियन, so that is obviously more than the fictional one. Okay, it seems we have reached a point where the people of the world are richer than we are capable of imagining. Now, this is a very, very interesting aspect that they have highlighted, और मुझे लगता है कि इस पूरे डिस्कशन का जो मेन मुद्दा है वो उन लोगों ने लास्ट में लिख दिया। इन दोनों लिस्टों को देख के हमें पता चलता है कि हम उस पॉइंट पे आ गए हैं कि रियल वर्ल्ड में लोगों के पास ज्यादा पैसा है एज कंपेयर टू इमेजिनरी वर्ल्ड। सो एक्चुअली दी पीपल or the billionaires of the real world are having more money than the ones who are considered as fictional. Okay, very interesting discussion, right? और ये जो चीज है ना लास्ट में जो इन लोगों ने मेंशन की गाइस, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी कि यही इस पूरे डिस्कशन का मेन मैसेज है, that when you compare real billionaires with the fictional ones, you realize that the real ones actually have more money than the fictional ones. Okay, let's see the options. The gap between the net worth of real life billionaires and fictional ones as seen from the Forbes list of both indicate that people have become rich beyond our imagination. So अगर हम देखें net worth of real life billionaires और fictional वाले billionaires की और दोनों की Forbes list को consider करें तो इससे हमें पता चलता है कि जो असली दुनिया के लोग हैं वो imaginary दुनिया के लोगों से ज्यादा अमीर हो गए हैं, ठीक है। Okay, looks like a good option. Okay, so we can keep it. Okay, next पे चलते हैं. The gap between the net worth of Jeff Bezos and Scrooge McDuck is an example of the degree. Guys, ये यहीं से गड़बड़ लग रहा है. Gap between the net worth of Jeff Bezos and Scrooge McDuck. क्या इन दोनों के एग्जाम्पल के थ्रू ही हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं या पूरी लिस्ट ही ये इंडिकेट करती है?
है ना. द गैप बिटवीन द नेट वर्थ ऑफ जेफ बेजोस एंड स्क्रूज मैकडक इज एन एग्जांपल. ओके, सो दे देमसेल्व्स आर सेइंग यार ये तो एग्जांपल है. मतलब इन्होंने स्टार्टिंग में जो चीज लिखी वो एग्जाम्पल है, ना कि मेन मैसेज. ओके, ऑफ द डिग्री बाय विच द वेल्थ ऑफ रियल वर्ल्ड बिलियनर्स एक्सीड दैट ऑफ फिक्शनल वंस. नाउ विल टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जो शायद आपने नोटिस नहीं की होगी. ये जो करेक्टर्स हैं, ये करेक्टर्स आपके फोर्ब्स लिस्ट के हैं, और यहां जो डिस्कशन चल रहा है वो फोर्ब्स लिस्ट के कंटेक्स्ट में चल रहा है. डिस्कशन ये नहीं चल रहा कि रियल वर्ल्ड में जो लोग हैं उनके पास ज्यादा पैसा है एज कंपेयर टू जो फिक्शनल वर्ल्ड के जो करेक्टर्स है. नहीं, फिक्शनल वर्ल्ड के करेक्टर्स जिनकी फोर्ब्स में लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट को कंपेयर कर रहे हैं हम. ठीक है. सो गाइस, इफ यू एक्चुअली नोटिस द सेकंड ऑप्शन, इट इज मिसिंग आउट ऑन द कीवर्ड दैट इज फोर्ब्स लिस्ट. Okay, because that is something that is very important, क्योंकि अपना पूरा डिस्कशन ही फोर्ब्स लिस्ट के कंटेक्स्ट में. सेकंड, जेफ बेजोस एंड स्क्रूज मैकडक are just an example of how these people in real world are like, है ना, they have much more money as compared to the fictional ones. तो मैंने सेकंड ऑप्शन में एग्जाम्पल को प्रायोरिटाइज किया rather than the main concept. Okay, and also सबसे बड़ी चीज, फोर्ब्स लिस्ट इसमें मेंशन्ड ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आंसर मेरा नहीं हो सकता. Okay, let's look at the third option. As per Forbes list of real and fictional billionaires, Jeff Bezos's fortune has far outstripped Scrooge McDuck, thus showing that in the real world, people have become richer beyond our imagination. Guys, again, the focus of third option is on the example of the money that Jeff Bezos has versus the money that Scrooge McDuck has. मुझे एक चीज बताइए, क्या ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि जो टॉप पे जो दो लोग हैं, वन इज जेफ बेजोस हु इज एट द टॉप ऑफ द रियल वर्ल्ड, एंड स्क्रूज मैकडक हु इज एट द टॉप ऑफ द फिक्शनल वाला लिस्ट. ओके, आर दीज टू एग्जांपल्स like the more important thing in proving that gap between real world billionaires and fictional ones has, like, you know, really exceeded, or it's like the real world ones have far gone far beyond the fictional ones? नहीं यार, ये सिर्फ एक एग्जांपल है जो कि बिगर कंसेप्ट को प्रूव कर रहा है, that the gap between net worth of real world and fictional world billionaires has now like increased, and now the real world ones are more, like, you know, they are more rich. Okay, they're richer than the fictional ones. Now, because you are emphasizing the example rather than the concept, I would actually rule this one out. Why? Because the structuring of third option is invalid, because and it's giving more importance to the example rather than the main agenda. Okay, technically होना क्या चाहिए, एजेंडा को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए rather than example, right? When it comes to wealth, people in the real world, oh, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रियल वर्ल्ड के पीपल ने फिक्शनल वर्ल्ड को पीछे छोड़ दिया है. ये सिर्फ फोर्ब्स की लिस्ट के कंटेक्स्ट में ये बात हो रही है, और रियल वर्ल्ड और फिक्शनल वर्ल्ड अदरवाइज हम नहीं बता सकते भाई. वी आर रियली डीलिंग विद ओनली द फोर्ब्स लिस्ट. इफ यू लुक एट द फोर्थ ऑप्शन, दे हैव नॉट मेंशन फोर्ब्स लिस्ट. ओके, सो गाइस, फाइनली सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही आपके आउट हो गए, क्योंकि इसमें फोर्ब्स लिस्ट नहीं आया. ठीक है, तो ये दोनों तो चले गए, कीवर्ड की वजह से चले गए. फिर थर्ड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बचते हैं. थर्ड एंड फर्स्ट ऑप्शन गाइस दोनों फैक्चुअली सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फर्स्ट ऑप्शन इज प्रायोरिटाइजिंग द कंसेप्ट and third option is prioritizing the example. Okay, so what is the concept? The concept level statement is that the gap between the net worth of real life billionaires and fictional ones, as seen from the Forbes list of both, indicates or proves to us that the people in real world are richer than the people in fictional world. This is the answer. Okay, the question is not emphasizing the wealth of Jeff Bezos versus the wealth of Scrooge McDuck. नहीं, इस पे एम्फेसिस नहीं है. ये तो सिर्फ उस एक लिस्ट का पार्ट है जिसका हम एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे ये बंदा है, फर्स्ट नंबर पे ये बंदा है, और इन दोनों की वेल्थ का ये कंपैरिजन है. बट इफ आई लुक एट द ब्रॉडर बिगर मैसेज, दिस इज वेयर my bigger message, the conceptual level message is targeted. Answer is going to be first option. Okay, so did you observe my technique? मैंने क्या किया, मैंने concept को, main point को prefer किया over the example, right? Okay, so this is something that you should also notice while choosing options. Let's move on to the next question. Okay,
सो आई होप गाइस आपने रीड कर लिया, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, रीड सॉल्व करते हैं। When words fail, picture speak. Okay, जब words fail हो जाते हैं तो पिक्चर बातें करती हैं, ठीक है। With the emergence of photo and video sharing social platforms such as Instagram and Snapchat, brands are increasingly harnessing the power of pixels, guys. So the discussion is about image sharing platforms. वापस से नोटिस करना, discussion is about image शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स। इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स में एग्जांपल क्या है आपके, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स मींस वीडियो एंड ऑडियो, वीडियो एंड फोटोज, एंड दीज आर हार्नेसिंग द पावर ऑफ पिक्सेल्स। ओके, पावर ऑफ पिक्सेल्स तो समझ ही गए होंगे, कैमरा का पावर, राइट। इफ यू आर अ फूड और फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड, these platforms are the best bet for seeking young and creative audience, unlike Facebook and Twitter which work well with brands with mass appeal. Okay, so ऑथर ये बोल रहा है कि ये जो इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट, ओके, दे आर लाइक द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर फूड, फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्रांड्स। तो नोटिस करना कि भाई कुछ ब्रांड्स के लिए ये इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स ज्यादा प्रेफरेबल हैं, क्योंकि यहाँ पे यंग और क्रिएटिव ऑडियंस आते हैं, ठीक है। तो यंग और क्रिएटिव ऑडियंस के हिसाब से फूड, फैशन और लाइफस्टाइल के ब्रांड्स यहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं। गुड एनफ, आगे चलते हैं। नेस्ले, किटकैट, ग्रोफर्स, स्पोर्ट्स कीटा हैव टेकन इन शॉर्ट्स। ओके, सो ये सारे की सारी क्या है, या तो फूड की ब्रांड है, या फैशन की ब्रांड है, लाइफस्टाइल की ब्रांड है। और सम ऑफ द ब्रांड्स प्रेजेंट ऑन द प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, अपार्ट फ्रॉम वांटिंग टू क्रिएट अवेयरनेस, कंपनीज आर आल्सो यूजिंग दीज नेटवर्क्स टू ड्राइव ऐप इंस्टॉल्स। सो जो कंपनीज हैं वो इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को अपने खुद के एडवर्टाइजमेंट और अवेयरनेस के लिए तो यूज कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो इसको इसलिए भी यूज कर रही हैं क्योंकि इन इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो अपनी ऐप के ज्यादा इंस्टॉल्स करवा सकते हैं। लाइक ऑब्वियसली, क्योंकि भाई आपको कैसे पता चलेगा कि एक सो एंड सो ब्रांड एग्जिस्ट करती है। ओके, आप है ना, मतलब उसको देखोगे किसी इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, और फिर आप जाके उसकी ऐप को डाउनलोड करोगे। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐप के इंस्टॉल्स भी इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। नाउ the options that you have are very smartly constructed, and as I said in the starting, that the term para summary is a misnomer. That means none of these options is perfect, but we will have to find out the option that is relatively better. देखते हैं। Brands are now using image sharing platforms to woo customers. तो यार बात तो सही है, तो factually तो ये correct है, ठीक है। तो इसको अपन कह देते हैं factually correct। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो जितनी इंफॉर्मेशन है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहीं और मिल रही है क्या मेरे को, ठीक है। फेसबुक एंड ट्विटर इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर ब्रांड्स विद मास अपील, गाइस। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि फेसबुक एंड ट्विटर के बारे में तो ये डिस्कशन है नहीं, तो मेरे ख्याल से ये तो अपन इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम आर यूजिंग पावर ऑफ पिक्सेल्स टू वू कस्टमर्स एंड ड्राइव ऐप इंस्टॉल्स। ओके गाइस, लुक एट दिस। इफ यू लुक एट थर्ड ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज फैक्चुअली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम को यूज किया जा रहा है और उसकी वजह से लोग कस्टमर्स भी आ रहे हैं, कंज्यूमर्स भी आ रहे हैं, है ना। वो इन्फर कर सकते हो आप, क्योंकि स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम आर लाइक टू पॉपुलर इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, राइट। बट गाइस, दिस इज द थिंग, इज दिस डिस्कशन अबाउट इंस्टा एंड स्नैपचैट? नो, दिस डिस्कशन इज अबाउट image sharing platforms, and Snapchat and Instagram are the examples of image sharing platforms. So though this option is not incorrect as per the factual relevance, क्योंकि given है, लेकिन यहां पे emphasis किस पे आ गया? Examples पे, examples of image sharing platforms, and we know that this discussion is not about Snapchat and Instagram, so I can rule this one out. आगे चलते हैं। ब्रांड्स आर नाउ यूजिंग सोशल प्लेटफॉर्म्स टू वू कंज्यूमर्स इन इंडिया, गाइस। देखो कितना स्मार्ट वर्ड प्ले इन्होंने किया। स्टार्टिंग में हम लोग बात करते हैं ना वर्ड प्ले की, कि आपको एक ऐसा वर्ड दे देंगे, एक ऐसा फ्रेज दे देंगे जो बड़ा मिलता जुलता सा होगा, आप समझ नहीं पाओगे। डिस्कशन किस चीज के बारे में था? इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स। यहां पे इन्होंने क्या दिया? सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो सोशल प्लेटफॉर्म्स और इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स तो अलग अलग बातें हैं। आई बिलीव यू अग्री विद मी ऑन दिस। तो यार ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो गया। द आंसर इज option 1. Okay, so I hope all of you understood this question. Okay, let's move on to the last question. Okay, now this is a slightly lengthy question, and I want people to give it a good try. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना। ओके,
I hope guys you have tried this question, so let me solve this question for you. Problems associated with gait can predict a significant decline in memory and thinking, a new study has found. So like the way you move, okay, that is your gait. ठीक है, आपका बेसिकली जो चलने का तरीका होता है दैट इज गेट. आपके गेट को देख के ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आपके मेमोरी और थिंकिंग में क्या सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, यहां पे नोटिस करो. प्रॉब्लम्स विद गेट इंडिकेट अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन. इसका पता है मीनिंग क्या है? अगर आपका मेमोरी और थिंकिंग बहुत ज्यादा डिक्लाइन करेगा, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है मैसिव, ओके, बहुत ज्यादा, तो वो गेट में रिफ्लेक्ट करेगा. ओके, सो इट्स नॉट अ डायरेक्ट कोरिलेशन कि आपका मेमोरी कम हुआ, थिंकिंग कम हुआ और गेट में रिफ्लेक्शन आया. नो, it's not a direct correlation. It's a sort of correlation where when you have a significant decline, only then it will show in the way you walk in your gait. ये चीज मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं? क्योंकि इसके बेसिस पे ना ऑप्शंस रूल आउट होंगे. अब नोटिस करना, ठीक है. यूजिंग कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस, रिसर्चर्स एट मेयो क्लिनिक इन यूएस measured gait parameters such as stride length, ambulatory time, gait speed, step count, cadence, stance time, and arm swing. They examined medical records of residents from Olmsted County in US who were between ages of 70 and 89 as of October 2004 using a Rochester epidemiology project. So guys, there's a lot of bulk data in here, but इसकी कोई relevance नहीं है. मेन मुद्दा आपको समझ में आ गया कि भाई इन लोगों ने ये सारे के सारे पैरामीटर्स को मेजर किया और जिन लोगों पे मेजर किया उनकी एज थी 70 to 89. ओके, और ये सारे पैरामीटर्स हैं गेट के पैरामीटर्स. ठीक है, मतलब जब अपन गेट को एनालाइज करते हैं तो उसमें सारे पैरामीटर्स इंक्लूडेड होते हैं. ओके, द एनालिसिस इंक्लूडेड 3426 cognitively normal patients enrolled in the Mayo Clinic study of aging who has complete gait and neuropsychological assessment. Alterations in several gait parameters were associated with decline in memory, thinking and language skills and visual perception of the spatial relationship of objects. सिंपल लैंग्वेज में जब आपके गेट के पैरामीटर्स चेंज होते हैं, ठीक है, ऑल्टर होते हैं, ना, मतलब इसको ऐसे सोचना, एक आपकी नॉर्मल गेट है, ठीक है, एक आपका नॉर्मल चलने का जो तरीका है और एक आपकी ऑल्टर वाली गेट है ना, लाइक ऑल्टर्ड मतलब चेंज हो गई, आपके चलने का तरीका चेंज हो गया. तो नॉर्मल से ऑल्टर्ड गेट है ना, ऑल्टर्ड ऑब्वियसली not in a positive sense, in a negative sense. Okay, like you have shown some sort of decline in the way you walk. Okay, so altered gait जो है, ठीक है, उसको इन लोगों ने प्रिडिक्ट किया इन सारे पैरामीटर्स के थ्रू. अब इन पैरामीटर्स की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि नॉर्मल गेट से जब आपकी गेट थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, तो जब उन लोगों ने ऑल्टर्ड गेट को चेक किया, सो दे found that altered gait was associated with decline in memory, thinking, language skills, visual perception, spatial relationship. जो कि सारे के सारे आपके क्या हैं? सारे के सारे आपके इंटेलेक्ट या आपकी थिंकिंग या मेमोरी या आपके ब्रेन के पैरामीटर्स है ना, ठीक है. तो मेमोरी, थिंकिंग, लैंग्वेज स्किल्स, विजुअल परसेप्शन, ये सारी की सारी चीजें आपकी डिक्लाइन हो गई है ना. और जो डिक्लाइन है वो आपके किस में शो हो रहा है? गेट में, ठीक है, आपके चलने के तरीके में, ठीक है. सो now we have read the discussion and we realize that this study was done on aged people. That is one. Second, these people were researched for many parameters that comprise gait, and it was found that many of the aspects of your thinking and memory, they show a decline, and this decline could be predicted by looking at your gait. And if the decline is significant, अगर आपकी मेमोरी और थिंकिंग में बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आता है तो वो आपकी गेट को भी चेंज कर देता है, ठीक है. ओके, सो आई बिलीव अभी हमें समझ में आया. लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. Research has shown that in aging people there is a predictable walking style which leads to decline in. यार ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात हो रही है. Okay, look at this option, guys. Okay, how wrong this option is. Okay, this is factually invalid, right? Research has shown that in aging people there's a predictable walking style which leads to a decline in memory. Predictable walking style is leading to a decline in memory and thinking? I don't think so. Okay, in fact your decline in memory and thinking would be reflected in your walking style. So this option is wrong. In fact, this is factually incorrect.
ठीक है, तो फैक्चुअली गलत ही हो गया ना। चलो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। This one is ruled out. Research has shown that if there is a significant decline in memory and thinking, especially in aged people, it is reflected in one's gait, guys. This is covering almost all the targets. ठीक है, research has shown that if there is significant decline, yes, we are talking about significant decline. If there is a significant decline, so this is one keyword, significant decline guys, यहाँ पे भी था। अगर significant decline होता है मेमोरी और थिंकिंग में, तो वो आपकी गेट में रिफ्लेक्ट होता है। ओके, तो पैसेज आपको क्या बोल रहा है कि सिग्निफिकेंटली अगर आपकी मेमोरी और थिंकिंग डिक्रीज होगी, है ना, तो ही वो आपकी गेट में रिफ्लेक्ट करेगा। लुक्स लाइक द बेस्ट ऑप्शन टू मी। ओके, दिस इज करेक्ट इन एवरी सेंस। ओके, सो वी आर गोइंग टू कीप दिस वन, लेकिन बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। रिसर्च हैज शोन दैट अ पर्सन्स मेमोरी, थिंकिंग एंड लैंग्वेज स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड इन हिज और हर गेट। गाइस लुक एट दिस। द प्रॉब्लम विद थर्ड ऑप्शन इज दिस। थर्ड ऑप्शन को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन थिंकिंग, मेमोरी एंड लैंग्वेज एंड द गेट। सो इट्स लाइक दिस। थर्ड ऑप्शन के थ्रू अगर अपन देखें तो शायद थर्ड ऑप्शन ये बोल रहा है कि आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है कि मतलब है ना, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज, मतलब है ना, मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। ठीक है, सॉर्ट ऑफ। ओके, मेमोरी, थिंकिंग और लैंग्वेज स्किल कम होगी। लेट अस से कि मेमोरी, थिंकिंग और लैंग्वेज स्किल 10% से कम हुई, तो आपकी गेट के अंदर भी चेंज आ जाएगा 10% का ही। Okay, this is direct correlation. If it goes down by 10%, then gate would show a decline of 10%. Now, my question to you people is this a correlation that is direct correlation कि एक कम होगी तो दूसरी वाली भी कम हो जाएगी? ठीक है ना, गेट वाला गेट भी आपका खराब हो जाएगा अगर आपका क्या कहते हैं लैंग्वेज स्किल या आपका थिंकिंग और मेमोरी कम होता है तो। या फिर ऐसा है कि लैंग्वेज, थिंकिंग और मेमोरी स्किल्स का जो डिक्लाइन है वो आपको गेट में तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नहीं हो गया। Okay, I believe all of you would agree with me on this, that sir, it is significant decline that is reflected in the gait of a person, not small declines. ठीक है, so this option is factually incorrect. Next पे आते हैं। Research has shown that as we age, there is a decline in memory and thinking and language skills, and this can be predicted by gait assessment. Guys, again, this is a factually incorrect option. ये दोनों के दोनों factually incorrect हैं, because no, it's not predicted in your gait. It is predicted in your gait only when there is a significant fall in the level of thinking, memory, and language skills. If it's not significant, then it would not be shown. Okay, what does that mean? It means my answer is going to be second option, because that is the only option that talks about that very important aspect, significant decline. Okay, so second option is my answer. Okay, so guys, that was a session on para summary. I hope इस सेशन की वजह से आपका काफी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा पैरा समरी का। सो बिफोर वी एंड द सेशन, सो एज यू ऑल रियलाइज, दीज आर द students who have shown some fabulous results in the past years. Okay, so 98 plus, 99 plus. Okay, so by this time you all of you realize that we have run this batch. We are running this batch, Chanakya batch, guys. So if you want to become a part of this batch, you want to be studying in a very systematic manner. Okay, you can consider this batch. 27 मई से स्टार्ट हुआ था और आपके ओमैट्स कवर कर रहा है। ठीक है, 31 मार्च तक ये वैलिड रहेगा आपका कोर्स। ओके, it includes more or less everything that you require for a CAT preparation. 6 days a week classes, video lectures. Okay, so live lectures होंगे, आपके पास recording available हो जाती है, तो जैसे lecture खत्म होता है you can watch the recording also. You have the best faculties. Obviously I'm going to take the verbal section. Okay, then you have Udit sir and Vijay sir. Okay, so we have all the top faculties that you have in the industry. Printed booklets आपको मिलती हैं, घर पे डिलीवर हो जाती हैं। ठीक है, and you have mock test, you have sectional test. Okay, so more or less everything is included. You can also check out a dedicated video that we have made on this batch. Okay, so guys, that's it for today's session. आज के लिए इतना ही, and I'm going to see you in the next session. Bye bye, take care.